Bu ana bu yerda xorijlik mehmon o'tiribdi. Ko'rdingiz-a? O'zbek tilini ham, rus tilini ham bilmas ekan. Unga faqat ingliz tilida gaplashar ekan. Shunga sen qaragin, men tushunmayapman. U bo'yini boshini aylantirib qo'ygan. U o'zi qayerda ekan? Mahallasidagi kafeda ishlayotganmish. Yur. Usti borib ko'rib kelamiz. Maza qilib qotib kelamiz. Bu o'zbek milliy taomi hali, balki nafaqat bahorda, bilmasam, yil bo'yi pishiriladi. Kamida 24 soat qaynaydi. Ish qilib shumikin? Shu bo'lsa kerak. Mahallani boshida shu kafe bor-ku. Masala hal. Boshida bitta Halim so'rashayotgan ekan. Sahih. Shuning uchun kelishgan. Siz izlagan barcha ko'rsatuv va seriallarning izlagan ismlari endi sevimli YouTube birinchi faslda. Premyeralar to'liqchilardan ko'rib boring. Obuna bo'l qismini va qo'ng'iroqchani bosib, hech bir o'tkazib yubormang. Assalom. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qalaysan o'g'lim? Yaxshimisan? Yaxshisan? Yaxshi. Rahmat sizga. Nega rahmat? Nega rahmat? Kechiring ozgina. Ahmoqlik qilib qo'ydim. Oxirini o'ylamasdan xato qilib qo'ydim, chunki xayolimda faqat shu narsa, miyamni faqat o'sha narsa qamrab oldi. Qo'ydim. Oqibatini o'ylamasdan ish qilib qo'ydim. Agar bir kunda emas bo'lmasangiz qayerdan bilaman? Balki bir siz bu 10 yilda chiqqan bo'larmidim. O'zi seni yoshingda qon qaynoq bo'ladi. Yo'lingga nima? Shuning uchun jahlda xayol nimadir kelsa, hech ham qila ko'rma. Shuni kutgin. Avval fikring o'zgarishi. Meni-ku imkonim bo'lmay seni olib chiqa oldim. Bo'lmaganda nima bo'lardi? Bitta qayoqda barbod bo'ladi. Odaga ayolni deb hayoting barbod bo'lardi. Dada. Birda bir kun o'tirgan bo'lsam ham hammasini tushunib yetdi. U yerda faqat bo'lsang bo'ldi. Iltimos dada, boshqa shu ayolni ko'rmaylik. Shunga ham so'z beraman. Ko'rib qo'yganda bo'pti ketdikmi? Oyman urmaysandirlar. Ha, hozir hujjatlarni ko'rib oling. Sen pastga tushaver. Hozir tushaman. Mayli. Xo'sh, mana bo'ldi. Jonim. Boylarga maza. Muzlatgich to'la. Xohlagan narsalarni olib yeyishadi. Dam olgilari kelsa, xohlagan davlatlariga borib dam olishadi. Menga qarang. Qarang. Siz qachon boyib ketasiz? Yaqin orada. Bu turishingiz hech qachon boyib ketmaysiz. Bo'lsa, Sabr qil. Boy. qanaqa? Menimiz. Oyim bilan puxta reja qilib qo'yganman. Bir reja. Reja? Azroil ko'rgandek baqirib qoldinglar. Azroilni ko'rgan. Oyi. Siz kasalxonada qolishingiz kerak edi-yu. Menga zarlmi? Pochamiz shuncha ishim bor. Pocha, shu kim qarab turibdi? Bip, hech ham xavotir olmang. Bip binoidek tuppa-tuzul. Qarab turishi shart emas. Kimdir nimaga kasalxonada yotibdilar bu? Bo'lmasa, voy xudoyimga bir necha marta aytdim. Ortiq savol bermang. Meni ishlar qichisizni tiqmang dedimmi? Undan ko'ra bilib ishlaringizni qiling, gap sotguncha eringiz bilan. Bilib ishlang. Boring, bitta kokteyl charchadim. Rosa chiqadim. Xo'p. Tayyorlab Oyi. Oy. Bo'ldimi? Birdan Hammasi halmi? xamir qil sug'urgandi hech
kim hech narsani sezmadi. Bunday bo'l. Oyi, bilib qolsa nima bo'ladi? Qolsa nima bo'ladi? Voy. Onang bunga yaxshi bilmas ekansan. Bu ham rejam bor. Menga yaxshi Oyi, bu safar katta sher bilan o'ynashyapsiz. Siz bo'lgani yutib yubormasa, Qo'rqitmang, oyi. Oyi, meni qo'rqitmang. Oyi. Oyi. Vol. Oyi. Assalomu alaykum. Volidam. Voy, dada, buvim artistlik qilyaptilar. Nomerlarni o'tkazib chiqaman. Alo. Dastlabki olib keldik. Aha, hozirmoqchilar. Xo'p. tinchlikmi? Bu yoqda qaynatam turib, bergan pulini so'rab. Men ishlaymi yo senga vaqt ajratdi? Nima qilay? Kecha qaynota ketgan. Qaynatam? Tazamkaga kelibdilar. Xotiningiz xotiraga kelib ketishdi. Siz bilan Buni menga indamagandi. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों ड्रामा सीरियल आजकल काफ़ी छाया हुआ है। ये इसकी ड्रामा सीरियल की 71 नंबर किस्त जो कि आने वाली है। इसमें एक अंकल जो कि बहुत ज़्यादा बीमार होता है, वो लड़की उसे कह रही होती है कि तुम कभी इतना बीमार तो नहीं हुए, तुम्हें क्या हो गया है। मैं डॉक्टर को फ़ोन करती हूँ, इतने में वो डॉक्टर को कॉल करती है और अंकल से कहती है कि तुम रेस्ट भी तो नहीं करते, दिन रात काम में मसरूफ़ रहते हो, तुम्हें चाहिए कि तुम रेस्ट करो, इतना काम करोगे तो बीमार हो जाओगे। इतने में वो डॉक्टर वहाँ पर आता है। डॉक्टर आकर उसे कहता है कि इसे क्या हुआ है। वो कहती है कि अब काफ़ी अरसे से ये बीमार थे और दिन रात काम में मसरूफ़ रहते थे। इतने में वो दूसरी आंटी बहुत परेशान होती है और दुआ कर रही होती है कि या अल्लाह ये जल्दी से सही हो जाए। उसके बच्चे भी बहुत परेशान होते हैं। उसकी बेटी कहती है या अल्लाह पाक मेरे वालिद को जल्दी सेहत अता फरमा, और आंटी भी साथ दुआ कर रही होती है। वो लड़की अपनी वालदा से कहती है कि अम्मी जान, हम क्यों ना अब्बू जान को बाहर ले जाएं, कहीं बाहर मुल्क में ले जाएं, वहाँ से इनका इलाज करवाते हैं। इतने में उनकी एक रिश्तेदार आती है जो कि अपने हस्बैंड के साथ आती है। उसका हस्बैंड डॉक्टर होता है, जो कि डॉक्टर देखते ही कहता है कि अंकल अब लास्ट स्टेज में हैं, इनकी खिदमत कर लो जितनी करनी है। वो सब हैरानगी से डॉक्टर की तरफ देखते हैं और डॉक्टर कहता है मैंने ऐसे पेशेंट काफ़ी देखे हैं जो कि इस स्टेज में आके उनको ये बीमारी लग जाती है। इस बीमारी के कुछ अर्से बाद उनकी डेथ हो जाती है। चाहे आप इनका जितना मर्ज़ी इलाज करवा लें, जहाँ से मेडिसिन ले, वो एक दूसरे की तरफ देखते हैं और परेशान हो जाते हैं और सोचते हैं कि इसके बाद इसकी जायदाद का क्या बनेगा। एक कहता है मैं इसकी जायदाद पे कब्ज़ा करूँगा, दूसरा कहता है मेरे हिस्से में आएगी। इतने में अंकल देख के परेशान हो जाते हैं और कहता है क्या हुआ, अभी तो मैं मरा भी नहीं, तुमने मेरे मरने से पहले ही जायदाद बांटनी शुरू कर दी। तो तमाम परेशानियों के साथ साथ वो दूसरा वकील जो आता है वो वहीं पे बैठा होता है और वकील कहता है कि मेरे पास इसकी वसीयत है। वो लड़की जो उसकी अंकल की जो उस अंकल की पोती होती है, अंकल उससे कहता है कि तुमने काफ़ी मेरा साथ दिया है, मैं सोच रहा हूँ कि सारी जायदाद तुम्हारे नाम में कर दो। इतने में उस लड़की का शौहर भी वहाँ पे होता है। वो कहता है क्यों नहीं अंकल, आखिर मेरी बेगम ने तुम्हारी इतनी खिदमत की है तो तुम जायदाद इसके हवाले कर दो। इतने में वो लड़का वहाँ से पेपर लेके आता है और पेपर लाते साथ ही उसे कहता है कि यहाँ पे साइन कर दें आप। इतने में वो अंकल की बेगम कहती है कि अभी रुक जाओ, अभी तो ये ज़िंदा हैं, तुम पहले ही वसीयत अपने नाम करवाने लगे हो। यहाँ पर दोस्तों एकदम से आंटी को भी अटैक आ जाता है, जो कि एकदम से बेड पे जाके गिर जाती है और दूसरा अंकल उसके पास आके कहता है क्या हुआ बिस्मा, तुम्हें आंखें क्यों नहीं खोल रही, उठो जल्दी से, क्या हुआ तुम्हें। इतने में आंटी आंखें खोल लेती है और वो आंटी के माथे पे हाथ लगाता है जिसे बहुत ज़्यादा बुखार होता है और वो कहता है मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले जाऊँ। वो कहती है नहीं, अब मुझे आराम की ज़रूरत है, तुम जाओ, मुझे आराम करने दो। वो कहता है चलो ठीक है, तुम आराम करो, मैं आऊँगा फिर तुम्हारा पता ले जाऊँगा। वो अंकल उसे कहता है अच्छा तुम आराम करो, मैं फिर तुम्हें मिलने के लिए हूँ। इतने में वकील वाला सीन आता है। वहाँ पे वकील जो कि परेशान होता है कि अभी तक तो अंकल को कुछ हुआ नहीं, अंकल के रिश्तेदार सारे जायदाद में लग गए हैं। इतने में अंकल का एक जो भाई का जो बेटा है वो भी वहाँ मौजूद होता है। वो काफ़ी अमीर होता है और वो इनकी बातें सुन के काफ़ी परेशान हो रहा होता है। इतने में उस लड़के की बेगम जो कि अपने शौहर से कहती है कि तुम्हारा क्या मूड है, तुम क्या कहना चाहते हो कि हम ये जायदाद अपने नाम ले लें। अंकल का भाई भी वहाँ पे खड़ा होता है। वो देखता है कि आंटी भी काफ़ी बेहोशी की हालत में है। वो उसकी तरफ देखता रहता है और देख के उसे कहता है डॉक्टर साहब इन्हें भी चेक करें, ये भी काफ़ी दिनों से अपसेट वगैरह हैं, देखें इनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल है कि नहीं।
अस्सलामुअलैकुम दोस्तों ड्रामा सीरियल आजकल काफ़ी छाया हुआ है। ये ड्रामा इसकी ड्रामा सीरियल की 71 नंबर किस्त जो कि आने वाली है। इसमें एक अंकल जो कि बहुत ज़्यादा बीमार होता है, वो लड़की उसे कह रही होती है कि तुम कभी इतना बीमार तो नहीं हुए, तुम्हें क्या हो गया है। मैं डॉक्टर को फ़ोन करती हूँ, इतने में वो डॉक्टर को कॉल करती है और अंकल से कहती है कि तुम रेस्ट भी तो नहीं करते, दिन रात काम में मसरूफ़ रहते हो, तुम्हें चाहिए कि तुम रेस्ट करो, इतना काम करोगे तो बीमार हो जाओगे। इतने में वो डॉक्टर वहाँ पर आता है। डॉक्टर आकर उसे कहता है कि इसे क्या हुआ है। वो कहती है कि अब काफ़ी अरसे से ये बीमार थे और दिन रात काम में मसरूफ़ रहते थे। इतने में वो दूसरी आंटी बहुत परेशान होती है और दुआ कर रही होती है कि या अल्लाह ये जल्दी से सही हो जाए। उसके बच्चे भी बहुत परेशान होते हैं। उसकी बेटी कहती है या अल्लाह पाक मेरे वालिद को जल्दी सेहत अता फरमा, और आंटी भी साथ दुआ कर रही होती है। वो लड़की अपनी वालदा से कहती है कि अम्मी जान हम क्यों ना अब्बू जान को बाहर ले जाएं, कहीं बाहर मुल्क में ले जाएं, वहाँ से इनका इलाज करवाते हैं। इतने में उनकी एक रिश्तेदार आती है जो कि अपने हस्बैंड के साथ आती है। उसका हस्बैंड डॉक्टर होता है, जो कि डॉक्टर देखते ही कहता है कि अंकल अब लास्ट स्टेज में हैं, इनकी खिदमत कर लो जितनी करनी है। वो सब हैरानगी से डॉक्टर की तरफ देखते हैं और डॉक्टर कहता है मैंने ऐसे पेशेंट काफ़ी देखे हैं जो कि इस स्टेज में आके उनको ये बीमारी लग जाती है। इस बीमारी के कुछ अर्से बाद उनकी डेथ हो जाती है। चाहे आप इनका जितना मर्ज़ी इलाज करवा लें, जहाँ से मेडिसन ले, वो एक दूसरे की तरफ देखते हैं और परेशान हो जाते हैं और सोचते हैं कि इसके बाद इसकी जायदाद का क्या बनेगा। एक कहता है मैं इसकी जायदाद पे कब्ज़ा करूँगा, दूसरा कहता है मेरे हिस्से में आएगी। इतने में अंकल देख के परेशान हो जाते हैं और कहता है क्या हुआ, अभी तो मैं मरा भी नहीं, तुमने मेरे मरने से पहले ही जायदाद बांटनी शुरू कर दी। तो तमाम परेशानियों के साथ साथ वो दूसरा वकील जो आता है वो वहीं पे बैठा होता है और वकील कहता है कि मेरे पास इसकी वसीयत है। वो लड़की जो उसकी अंकल की जो उस अंकल की पोती होती है, अंकल उससे कहता है कि तुमने काफ़ी मेरा साथ दिया है, मैं सोच रहा हूँ कि सारी जायदाद तुम्हारे नाम में कर दो। इतने में उस लड़की का शौहर भी वहाँ पे होता है। वो कहता है क्यों नहीं अंकल, आखिर मेरी बेगम ने तुम्हारी इतनी खिदमत की है तो तुम जायदाद इसके हवाले कर दो। इतने में वो लड़का वहाँ से पेपर लेके आता है और पेपर लाते साथ ही उसे कहता है कि यहाँ पे साइन कर दें आप। इतने में वो अंकल की बेगम कहती है कि अभी रुक जाओ, अभी तो ये ज़िंदा हैं, तुम पहले ही वसीयत अपने नाम करवाने लगे हो। यहाँ पर दोस्तों एकदम से आंटी को भी अटैक आ जाता है, जो कि एकदम से बेड पे जाके गिर जाती है और दूसरा अंकल उसके पास आके कहता है क्या हुआ बिस्मा, तुम्हें आंखें क्यों नहीं खोल रही, उठो जल्दी से, क्या हुआ तुम्हें। इतने में आंटी आंखें खोल लेती है और वो आंटी के माथे पे हाथ लगाता है जिसे बहुत ज़्यादा बुखार होता है और वो कहता है मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले जाऊँ। वो कहती है नहीं अब मुझे आराम की ज़रूरत है, तुम जाओ मुझे आराम करने दो। वो कहता है चलो ठीक है तुम आराम करो, मैं आऊँगा फिर तुम्हारा पता ले जाऊँगा। वो अंकल उसे कहता है अच्छा तुम आराम करो, मैं फिर तुम्हें मिलने के लिए हूँ। इतने में वकील वाला सीन आता है। वहाँ पे वकील जो कि परेशान होता है कि अभी तक तो अंकल को कुछ हुआ नहीं, अंकल के रिश्तेदार सारे जायदाद में लग गए हैं। इतने में अंकल का एक जो भाई का जो बेटा है वो भी वहाँ मौजूद होता है। वो काफ़ी अमीर होता है और वो इनकी बातें सुन के काफ़ी परेशान हो रहा होता है। इतने में उस लड़के की बेगम जो कि अपने शौहर से कहती है कि तुम्हारा क्या मूड है, तुम क्या कहना चाहते हो कि हम ये जायदाद अपने नाम ले लें। अंकल का भाई भी वहाँ पे खड़ा होता है। वो देखता है कि आंटी भी काफ़ी बेहोशी की हालत में है। वो उसकी तरफ देखता रहता है और देख के उसे कहता है डॉक्टर साहब इन्हें भी चेक करें, ये भी काफ़ी दिनों से अपसेट वगैरह हैं, देखें इनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल है कि नहीं। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों ड्रामा सीरियल आजकल काफ़ी छाया हुआ है। ये इसकी ड्रामा सीरियल की 71 नंबर किस्त जो कि आने वाली है। इसमें एक अंकल जो कि बहुत ज़्यादा बीमार होता है, वो लड़की उसे कह रही होती है कि तुम कभी इतना बीमार तो नहीं हुए, तुम्हें क्या हो गया है। मैं डॉक्टर को फ़ोन करती हूँ, इतने में वो डॉक्टर को कॉल करती है और अंकल से कहती है कि तुम रेस्ट भी तो नहीं करते, दिन रात काम में मसरूफ़ रहते हो, तुम्हें चाहिए कि तुम रेस्ट करो, इतना काम करोगे तो बीमार हो जाओगे। इतने में वो डॉक्टर वहाँ पर आता है। डॉक्टर आकर उसे कहता है कि इसे क्या हुआ है। वो कहती है कि अब काफ़ी अरसे से ये बीमार थे और दिन रात काम में मसरूफ़ रहते थे। इतने में वो दूसरी आंटी बहुत परेशान होती है और दुआ कर रही होती है कि या अल्लाह ये जल्दी से सही हो जाए। उसके बच्चे भी बहुत परेशान होते हैं। उसकी बेटी कहती है या अल्लाह पाक मेरे वालिद को जल्दी सेहत अता फरमा, और आंटी भी साथ दुआ कर रही होती है। वो लड़की अपनी वालदा से कहती है कि अम्मी जान हम क्यों ना अब्बू जान को बाहर ले जाएं, कहीं बाहर मुल्क में ले जाएं, वहाँ से इनका इलाज करवाते हैं। इतने में उनकी एक रिश्तेदार आती है जो कि अपने हस्बैंड के साथ आती है। उसका हस्बैंड डॉक्टर होता है, जो कि डॉक्टर देखते ही कहता है कि अंकल अब लास्ट स्टेज में हैं, इनकी खिदमत कर लो जितनी करनी है।
वो सब हैरानगी से डॉक्टर की तरफ देखते हैं और डॉक्टर कहता है मैंने ऐसे पेशेंट काफ़ी देखे हैं जो कि इस स्टेज में आके उनको ये बीमारी लग जाती है। इस बीमारी के कुछ अर्से बाद उनकी डेथ हो जाती है। चाहे आप इनका जितना मर्ज़ी इलाज करवा लें, जहाँ से मेडिसिन ले, वो एक दूसरे की तरफ देखते हैं और परेशान हो जाते हैं और सोचते हैं कि इसके बाद इसकी जायदाद का क्या बनेगा। एक कहता है मैं इसकी जायदाद पे कब्ज़ा करूँगा, दूसरा कहता है मेरे हिस्से में आएगी। इतने में अंकल देख के परेशान हो जाते हैं और कहता है क्या हुआ, अभी तो मैं मरा भी नहीं, तुमने मेरे मरने से पहले ही जायदाद बांटनी शुरू कर दी। तो तमाम परेशानियों के साथ साथ वो दूसरा वकील जो आता है वो वहीं पे बैठा होता है और वकील कहता है कि मेरे पास इसकी वसीयत है। वो लड़की जो उसकी अंकल की जो उस अंकल की पोती होती है, अंकल उससे कहता है कि तुमने काफ़ी मेरा साथ दिया है, मैं सोच रहा हूँ कि सारी जायदाद तुम्हारे नाम में कर दो। इतने में उस लड़की का शौहर भी वहाँ पे होता है। वो कहता है क्यों नहीं अंकल, आखिर मेरी बेगम ने तुम्हारी इतनी खिदमत की है तो तुम जायदाद इसके हवाले कर दो। इतने में वो लड़का वहाँ से पेपर लेके आता है और पेपर लाते साथ ही उसे कहता है कि यहाँ पे साइन कर दें आप। इतने में वो अंकल की बेगम कहती है कि अभी रुक जाओ, अभी तो ये ज़िंदा हैं, तुम पहले ही वसीयत अपने नाम करवाने लगे हो। यहाँ पर दोस्तों एकदम से आंटी को भी अटैक आ जाता है, जो कि एकदम से बेड पे जाके गिर जाती है और दूसरा अंकल उसके पास आके कहता है क्या हुआ बिस्मा, तुम्हें आंखें क्यों नहीं खोल रही, उठो जल्दी से, क्या हुआ तुम्हें। इतने में आंटी आंखें खोल लेती है और वो आंटी के माथे पे हाथ लगाता है जिसे बहुत ज़्यादा बुखार होता है और वो कहता है मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले जाऊँ। वो कहती है नहीं, अब मुझे आराम की ज़रूरत है, तुम जाओ, मुझे आराम करने दो। वो कहता है चलो ठीक है, तुम आराम करो, मैं आऊँगा फिर तुम्हारा पता ले जाऊँगा। वो अंकल उसे कहता है अच्छा तुम आराम करो, मैं फिर तुम्हें मिलने के लिए हूँ। इतने में वकील वाला सीन आता है। वहाँ पे वकील जो कि परेशान होता है कि अभी तक तो अंकल को कुछ हुआ नहीं, अंकल के रिश्तेदार सारे जायदाद में लग गए हैं। इतने में अंकल का एक जो भाई का जो बेटा है वो भी वहाँ मौजूद होता है। वो काफ़ी अमीर होता है और वो इनकी बातें सुन के काफ़ी परेशान हो रहा होता है। इतने में उस लड़के की बेगम जो कि अपने शौहर से कहती है कि तुम्हारा क्या मूड है, तुम क्या कहना चाहते हो कि हम ये जायदाद अपने नाम ले लें। अंकल का भाई भी वहाँ पे खड़ा होता है। वो देखता है कि आंटी भी काफ़ी बेहोशी की हालत में है। वो उसकी तरफ देखता रहता है और देख के उसे कहता है डॉक्टर साहब इन्हें भी चेक करें, ये भी काफ़ी दिनों से अपसेट वगैरह हैं, देखें इनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल है कि नहीं। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों ड्रामा सीरियल आजकल काफ़ी छाया हुआ है। ये इसकी ड्रामा सीरियल की 71 नंबर किस्त जो कि आने वाली है। इसमें एक अंकल जो कि बहुत ज़्यादा बीमार होता है, वो लड़की उसे कह रही होती है कि तुम कभी इतना बीमार तो नहीं हुए, तुम्हें क्या हो गया है। मैं डॉक्टर को फ़ोन करती हूँ। इतने में वो डॉक्टर को कॉल करती है और अंकल से कहती है कि तुम रेस्ट भी तो नहीं करते, दिन रात काम में मसरूफ़ रहते हो, तुम्हें चाहिए कि तुम रेस्ट करो, इतना काम करोगे तो बीमार हो जाओगे। इतने में वो डॉक्टर वहाँ पर आता है। डॉक्टर आकर उसे कहता है कि इसे क्या हुआ है। वो कहती है कि अब काफ़ी अरसे से ये बीमार थे और दिन रात काम में मसरूफ़ रहते थे। इतने में वो दूसरी आंटी बहुत परेशान होती है और दुआ कर रही होती है कि या अल्लाह ये जल्दी से सही हो जाए। उसके बच्चे भी बहुत परेशान होते हैं। उसकी बेटी कहती है या अल्लाह पाक मेरे वालिद को जल्दी सेहत अता फरमा, और आंटी भी साथ दुआ कर रही होती है। वो लड़की अपनी वालदा से कहती है कि अम्मी जान हम क्यों ना अब्बू जान को बाहर ले जाएं, कहीं बाहर मुल्क में ले जाएं, वहाँ से इनका इलाज करवाते हैं। इतने में उनकी एक रिश्तेदार आती है जो कि अपने हस्बैंड के साथ आती है। उसका हस्बैंड डॉक्टर होता है, जो कि डॉक्टर देखते ही कहता है कि अंकल अब लास्ट स्टेज में हैं, इनकी खिदमत कर लो जितनी करनी है। वो सब हैरानगी से डॉक्टर की तरफ देखते हैं और डॉक्टर कहता है मैंने ऐसे पेशेंट काफ़ी देखे हैं जो कि इस स्टेज में आके उनको ये बीमारी लग जाती है। इस बीमारी के कुछ अर्से बाद उनकी डेथ हो जाती है। चाहे आप इनका जितना मर्ज़ी इलाज करवा लें, जहाँ से मेडिसिन ले, वो एक दूसरे की तरफ देखते हैं और परेशान हो जाते हैं और सोचते हैं कि इसके बाद इसकी जायदाद का क्या बनेगा। एक कहता है मैं इसकी जायदाद पे कब्ज़ा करूँगा, दूसरा कहता है मेरे हिस्से में आएगी। इतने में अंकल देख के परेशान हो जाते हैं और कहता है क्या हुआ, अभी तो मैं मरा भी नहीं, तुमने मेरे मरने से पहले ही जायदाद बांटनी शुरू कर दी। तो तमाम परेशानियों के साथ साथ वो दूसरा वकील जो आता है वो वहीं पे बैठा होता है और वकील कहता है कि मेरे पास इसकी वसीयत है। वो लड़की जो उसकी अंकल की जो उस अंकल की पोती होती है, अंकल उससे कहता है कि तुमने काफ़ी मेरा साथ दिया है, मैं सोच रहा हूँ कि सारी जायदाद तुम्हारे नाम में कर दो। इतने में उस लड़की का शौहर भी वहाँ पे होता है। वो कहता है क्यों नहीं अंकल, आखिर मेरी बेगम ने तुम्हारी इतनी खिदमत की है तो तुम जायदाद इसके हवाले कर दो। इतने में वो लड़का वहाँ से पेपर लेके आता है और पेपर लाते साथ ही उसे कहता है कि यहाँ पे साइन कर दें आप। इतने में वो अंकल की बेगम कहती है कि अभी रुक जाओ, अभी तो ये ज़िंदा हैं, तुम पहले ही वसीयत अपने नाम करवाने लगे हो।
यहाँ पर दोस्तों एकदम से आंटी को भी अटैक आ जाता है, जो कि एकदम से बेड पे जाके गिर जाती है और दूसरा अंकल उसके पास आके कहता है क्या हुआ बिस्मा, तुम्हें आंखें क्यों नहीं खोल रही, उठो जल्दी से, क्या हुआ तुम्हें। इतने में आंटी आंखें खोल लेती है और वो आंटी के माथे पे हाथ लगाता है जिसे बहुत ज़्यादा बुखार होता है और वो कहता है मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले जाऊँ। वो कहती है नहीं अब मुझे आराम की ज़रूरत है, तुम जाओ मुझे आराम करने दो। वो कहता है चलो ठीक है तुम आराम करो, मैं आऊँगा फिर तुम्हारा पता ले जाऊँगा। वो अंकल उसे कहता है अच्छा तुम आराम करो, मैं फिर तुम्हें मिलने के लिए हूँ। इतने में वकील वाला सीन आता है। वहाँ पे वकील जो कि परेशान होता है कि अभी तक तो अंकल को कुछ हुआ नहीं, अंकल के रिश्तेदार सारे जायदाद में लग गए हैं। इतने में अंकल का एक जो भाई का जो बेटा है वो भी वहाँ मौजूद होता है। वो काफ़ी अमीर होता है और वो इनकी बातें सुन के काफ़ी परेशान हो रहा होता है। इतने में उस लड़के की बेगम जो कि अपने शौहर से कहती है कि तुम्हारा क्या मूड है, तुम क्या कहना चाहते हो कि हम ये जायदाद अपने नाम ले लें। अंकल का भाई भी वहाँ पे खड़ा होता है। वो देखता है कि आंटी भी काफ़ी बेहोशी की हालत में है। वो उसकी तरफ देखता रहता है और देख के उसे कहता है डॉक्टर साहब इन्हें भी चेक करें, ये भी काफ़ी दिनों से अपसेट वगैरह हैं, देखें इनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल है कि नहीं। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों ड्रामा सीरियल आजकल काफ़ी छाया हुआ है। ये इसकी ड्रामा सीरियल की 71 नंबर किस्त जो कि आने वाली है। इसमें एक अंकल जो कि बहुत ज़्यादा बीमार होता है, वो लड़की उसे कह रही होती है कि तुम कभी इतना बीमार तो नहीं हुए, तुम्हें क्या हो गया है। मैं डॉक्टर को फ़ोन करती हूँ। इतने में वो डॉक्टर को कॉल करती है और अंकल से कहती है कि तुम रेस्ट भी तो नहीं करते, दिन रात काम में मसरूफ़ रहते हो, तुम्हें चाहिए कि तुम रेस्ट करो, इतना काम करोगे तो बीमार हो जाओगे। इतने में वो डॉक्टर वहाँ पर आता है। डॉक्टर आकर उसे कहता है कि इसे क्या हुआ है। वो कहती है कि अब काफ़ी अरसे से ये बीमार थे और दिन रात काम में मसरूफ़ रहते थे। इतने में वो दूसरी आंटी बहुत परेशान होती है और दुआ कर रही होती है कि या अल्लाह ये जल्दी से सही हो जाए। उसके बच्चे भी बहुत परेशान होते हैं। उसकी बेटी कहती है या अल्लाह पाक मेरे वालिद को जल्दी सेहत अता फरमा, और आंटी भी साथ दुआ कर रही होती है। वो लड़की अपनी वालदा से कहती है कि अम्मी जान हम क्यों ना अब्बू जान को बाहर ले जाएं, कहीं बाहर मुल्क में ले जाएं, वहाँ से इनका इलाज करवाते हैं। इतने में उनकी एक रिश्तेदार आती है जो कि अपने हस्बैंड के साथ आती है। उसका हस्बैंड डॉक्टर होता है, जो कि डॉक्टर देखते ही कहता है कि अंकल अब लास्ट स्टेज में हैं, इनकी खिदमत कर लो जितनी करनी है। वो सब हैरानगी से डॉक्टर की तरफ देखते हैं और डॉक्टर कहता है मैंने ऐसे पेशेंट काफ़ी देखे हैं जो कि इस स्टेज में आके उनको ये बीमारी लग जाती है। इस बीमारी के कुछ अर्से बाद उनकी डेथ हो जाती है। चाहे आप इनका जितना मर्ज़ी इलाज करवा लें, जहाँ से मेडिसिन ले, वो एक दूसरे की तरफ देखते हैं और परेशान हो जाते हैं और सोचते हैं कि इसके बाद इसकी जायदाद का क्या बनेगा। एक कहता है मैं इसकी जायदाद पे कब्ज़ा करूँगा, दूसरा कहता है मेरे हिस्से में आएगी। इतने में अंकल देख के परेशान हो जाते हैं और कहता है क्या हुआ, अभी तो मैं मरा भी नहीं, तुमने मेरे मरने से पहले ही जायदाद बांटनी शुरू कर दी। तो तमाम परेशानियों के साथ साथ वो दूसरा वकील जो आता है वो वहीं पे बैठा होता है और वकील कहता है कि मेरे पास इसकी वसीयत है। वो लड़की जो उसकी अंकल की जो उस अंकल की पोती होती है, अंकल उससे कहता है कि तुमने काफ़ी मेरा साथ दिया है, मैं सोच रहा हूँ कि सारी जायदाद तुम्हारे नाम में कर दो। इतने में उस लड़की का शौहर भी वहाँ पे होता है। वो कहता है क्यों नहीं अंकल, आखिर मेरी बेगम ने तुम्हारी इतनी खिदमत की है तो तुम जायदाद इसके हवाले कर दो। इतने में वो लड़का वहाँ से पेपर लेके आता है और पेपर लाते साथ ही उसे कहता है कि यहाँ पे साइन कर दें आप। इतने में वो अंकल की बेगम कहती है कि अभी रुक जाओ, अभी तो ये ज़िंदा हैं, तुम पहले ही वसीयत अपने नाम करवाने लगे हो। यहाँ पर दोस्तों एकदम से आंटी को भी अटैक आ जाता है, जो कि एकदम से बेड पे जाके गिर जाती है और दूसरा अंकल उसके पास आके कहता है क्या हुआ बिस्मा, तुम्हें आंखें क्यों नहीं खोल रही, उठो जल्दी से, क्या हुआ तुम्हें। इतने में आंटी आंखें खोल लेती है और वो आंटी के माथे पे हाथ लगाता है जिसे बहुत ज़्यादा बुखार होता है और वो कहता है मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले जाऊँ। वो कहती है नहीं अब मुझे आराम की ज़रूरत है, तुम जाओ मुझे आराम करने दो। वो कहता है चलो ठीक है तुम आराम करो, मैं आऊँगा फिर तुम्हारा पता ले जाऊँगा। वो अंकल उसे कहता है अच्छा तुम आराम करो, मैं फिर तुम्हें मिलने के लिए हूँ। इतने में वकील वाला सीन आता है। वहाँ पे वकील जो कि परेशान होता है कि अभी तक तो अंकल को कुछ हुआ नहीं, अंकल के रिश्तेदार सारे जायदाद में लग गए हैं। इतने में अंकल का एक जो भाई का जो बेटा है वो भी वहाँ मौजूद होता है। वो काफ़ी अमीर होता है और वो इनकी बातें सुन के काफ़ी परेशान हो रहा होता है। इतने में उस लड़के की बेगम जो कि अपने शौहर से कहती है कि तुम्हारा क्या मूड है, तुम क्या कहना चाहते हो कि हम ये जायदाद अपने नाम ले लें। अंकल का भाई भी वहाँ पे खड़ा होता है। वो देखता है कि आंटी भी काफ़ी बेहोशी की हालत में है। वो उसकी तरफ देखता रहता है और देख के उसे कहता है डॉक्टर साहब इन्हें भी चेक करें,
ये भी काफ़ी दिनों से अपसेट वगैरह हैं। देखें इनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल है कि नहीं। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों ड्रामा सीरियल आजकल काफ़ी छाया हुआ है। ये ड्रामा इसकी ड्रामा सीरियल की 71 नंबर किस्त जो कि आने वाली है। इसमें एक अंकल जो कि बहुत ज़्यादा बीमार होता है, वो लड़की उसे कह रही होती है कि तुम कभी इतना बीमार तो नहीं हुए, तुम्हें क्या हो गया है। मैं डॉक्टर को फ़ोन करती हूँ, इतने में वो डॉक्टर को कॉल करती है और अंकल से कहती है कि तुम रेस्ट भी तो नहीं करते, दिन रात काम में मसरूफ़ रहते हो, तुम्हें चाहिए कि तुम रेस्ट करो, इतना काम करोगे तो बीमार हो जाओगे। इतने में वो डॉक्टर वहाँ पर आता है। डॉक्टर आकर उसे कहता है कि इसे क्या हुआ है। वो कहती है कि अब काफ़ी अरसे से ये बीमार थे और दिन रात काम में मसरूफ़ रहते थे। इतने में वो दूसरी आंटी बहुत परेशान होती है और दुआ कर रही होती है कि या अल्लाह ये जल्दी से सही हो जाए। उसके बच्चे भी बहुत परेशान होते हैं। उसकी बेटी कहती है या अल्लाह पाक मेरे वालिद को जल्दी सेहत अता फरमा, और आंटी भी साथ दुआ कर रही होती है। वो लड़की अपनी वालदा से कहती है कि अम्मी जान हम क्यों ना अब्बू जान को बाहर ले जाएं, कहीं बाहर मुल्क में ले जाएं, वहाँ से इनका इलाज करवाते हैं। इतने में उनकी एक रिश्तेदार आती है जो कि अपने हस्बैंड के साथ आती है। उसका हस्बैंड डॉक्टर होता है, जो कि डॉक्टर देखते ही कहता है कि अंकल अब लास्ट स्टेज में हैं, इनकी खिदमत कर लो जितनी करनी है। वो सब हैरानगी से डॉक्टर की तरफ देखते हैं और डॉक्टर कहता है मैंने ऐसे पेशेंट काफ़ी देखे हैं जो कि इस स्टेज में आके उनको ये बीमारी लग जाती है। इस बीमारी के कुछ अर्से बाद उनकी डेथ हो जाती है। चाहे आप इनका जितना मर्ज़ी इलाज करवा लें, जहाँ से मेडिसिन ले, वो एक दूसरे की तरफ देखते हैं और परेशान हो जाते हैं और सोचते हैं कि इसके बाद इसकी जायदाद का क्या बनेगा। एक कहता है मैं इसकी जायदाद पे कब्ज़ा करूँगा, दूसरा कहता है मेरे हिस्से में आएगी। इतने में अंकल देख के परेशान हो जाते हैं और कहता है क्या हुआ, अभी तो मैं मरा भी नहीं, तुमने मेरे मरने से पहले ही जायदाद बांटनी शुरू कर दी। तो तमाम परेशानियों के साथ साथ वो दूसरा वकील जो आता है वो वहीं पे बैठा होता है और वकील कहता है कि मेरे पास इसकी वसीयत है। वो लड़की जो उसकी अंकल की जो उस अंकल की पोती होती है, अंकल उससे कहता है कि तुमने काफ़ी मेरा साथ दिया है, मैं सोच रहा हूँ कि सारी जायदाद तुम्हारे नाम में कर दो। इतने में उस लड़की का शौहर भी वहाँ पे होता है। वो कहता है क्यों नहीं अंकल, आखिर मेरी बेगम ने तुम्हारी इतनी खिदमत की है तो तुम जायदाद इसके हवाले कर दो। इतने में वो लड़का वहाँ से पेपर लेके आता है और पेपर लाते साथ ही उसे कहता है कि यहाँ पे साइन कर दें आप। इतने में वो अंकल की बेगम कहती है कि अभी रुक जाओ, अभी तो ये ज़िंदा हैं, तुम पहले ही वसीयत अपने नाम करवाने लगे हो। यहाँ पर दोस्तों एकदम से आंटी को भी अटैक आ जाता है, जो कि एकदम से बेड पे जाके गिर जाती है और दूसरा अंकल उसके पास आके कहता है क्या हुआ बिस्मा, तुम्हें आंखें क्यों नहीं खोल रही, उठो जल्दी से, क्या हुआ तुम्हें। इतने में आंटी आंखें खोल लेती है और वो आंटी के माथे पे हाथ लगाता है जिसे बहुत ज़्यादा बुखार होता है और वो कहता है मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले जाऊँ। वो कहती नहीं अब मुझे आराम की ज़रूरत है, तुम जाओ मुझे आराम करने दो। वो कहता है चलो ठीक है तुम आराम करो, मैं आऊँगा फिर तुम्हारा पता ले जाऊँगा। वो अंकल उसे कहता है अच्छा तुम आराम करो, मैं फिर तुम्हें मिलने के लिए आऊँ। इतने में वकील वाला सीन आता है। वहाँ पे वकील जो कि परेशान होता है कि अभी तक तो अंकल को कुछ हुआ नहीं, अंकल के रिश्तेदार सारे जायदाद में लग गए हैं। इतने में अंकल का एक जो भाई का जो बेटा है वो भी वहाँ मौजूद होता है। वो काफ़ी अमीर होता है और वो इनकी बातें सुन के काफ़ी परेशान हो रहा होता है। इतने में उस लड़के की बेगम जो कि अपने शौहर से कहती है कि तुम्हारा क्या मूड है, तुम क्या कहना चाहते हो कि हम ये जायदाद अपने नाम ले लें। अंकल का भाई भी वहाँ पे खड़ा होता है। वो देखता है कि आंटी भी काफ़ी बेहोशी की हालत में है। वो उसकी तरफ देखता रहता है और देख के उसे कहता है डॉक्टर साहब इन्हें भी चेक करें, ये भी काफ़ी दिनों से अपसेट वगैरह हैं, देखें इनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल है कि नहीं। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों ड्रामा सीरियल आजकल काफ़ी छाया हुआ है। ये इसकी ड्रामा सीरियल की 71 नंबर किस्त जो कि आने वाली है। इसमें एक अंकल जो कि बहुत ज़्यादा बीमार होता है, वो लड़की उसे कह रही होती है कि तुम कभी इतना बीमार तो नहीं हुए, तुम्हें क्या हो गया है। मैं डॉक्टर को फ़ोन करती हूँ, इतने में वो डॉक्टर को कॉल करती है और अंकल से कहती है कि तुम रेस्ट भी तो नहीं करते, दिन रात काम में मसरूफ़ रहते हो, तुम्हें चाहिए कि तुम रेस्ट करो, इतना काम करोगे तो बीमार हो जाओगे। इतने में वो डॉक्टर वहाँ पर आता है। डॉक्टर आकर उसे कहता है कि इसे क्या हुआ है। वो कहती है कि अब काफ़ी अरसे से ये बीमार थे और दिन रात काम में मसरूफ़ रहते थे। इतने में वो दूसरी आंटी बहुत परेशान होती है और दुआ कर रही होती है कि या अल्लाह ये जल्दी से सही हो जाए। उसके बच्चे भी बहुत परेशान होते हैं। उसकी बेटी कहती है या अल्लाह पाक मेरे वालिद को जल्दी सेहत अता फरमा, और आंटी भी साथ दुआ कर रही होती है।
वो लड़की अपनी वालदा से कहती है कि अम्मी जान हम क्यों ना अब्बू जान को बाहर ले जाएं, कहीं बाहर मुल्क में ले जाएं, वहाँ से इनका इलाज करवाते हैं। इतने में उनकी एक रिश्तेदार आती है जो कि अपने हस्बैंड के साथ आती है। उसका हस्बैंड डॉक्टर होता है, जो कि डॉक्टर देखते ही कहता है कि अंकल अब लास्ट स्टेज में हैं, इनकी खिदमत कर लो जितनी करनी है। वो सब हैरानगी से डॉक्टर की तरफ देखते हैं और डॉक्टर कहता है मैंने ऐसे पेशेंट काफ़ी देखे हैं जो कि इस स्टेज में आके उनको ये बीमारी लग जाती है। इस बीमारी के कुछ अर्से बाद उनकी डेथ हो जाती है। चाहे आप इनका जितना मर्ज़ी इलाज करवा लें, जहाँ से मेडिसिन ले, वो एक दूसरे की तरफ देखते हैं और परेशान हो जाते हैं और सोचते हैं कि इसके बाद इसकी जायदाद का क्या बनेगा। एक कहता है मैं इसकी जायदाद पे कब्ज़ा करूँगा, दूसरा कहता है मेरे हिस्से में आएगी। इतने में अंकल देख के परेशान हो जाते हैं और कहता है क्या हुआ, अभी तो मैं मरा भी नहीं, तुमने मेरे मरने से पहले ही जायदाद बांटनी शुरू कर दी। तो तमाम परेशानियों के साथ साथ वो दूसरा वकील जो आता है वो वहीं पे बैठा होता है और वकील कहता है कि मेरे पास इसकी वसीयत है। वो लड़की जो उसकी अंकल की जो उस अंकल की पोती होती है, अंकल उससे कहता है कि तुमने काफ़ी मेरा साथ दिया है, मैं सोच रहा हूँ कि सारी जायदाद तुम्हारे नाम में कर दो। इतने में उस लड़की का शौहर भी वहाँ पे होता है। वो कहता है क्यों नहीं अंकल, आखिर मेरी बेगम ने तुम्हारी इतनी खिदमत की है तो तुम जायदाद इसके हवाले कर दो। इतने में वो लड़का वहाँ से पेपर लेके आता है और पेपर लाते साथ ही उसे कहता है कि यहाँ पे साइन कर दें आप। इतने में वो अंकल की बेगम कहती है कि अभी रुक जाओ, अभी तो ये ज़िंदा है, तुम पहले ही वसीयत अपने नाम करवाने लगे हो। यहाँ पर दोस्तों एकदम से आंटी को भी अटैक आ जाता है, जो कि एकदम से बेड पे जाके गिर जाती है और दूसरा अंकल उसके पास आके कहता है क्या हुआ बिस्मा, तुम्हें आंखें क्यों नहीं खोल रही, उठो जल्दी से, क्या हुआ तुम्हें। इतने में आंटी आंखें खोल लेती है और वो आंटी के माथे पे हाथ लगाता है जिसे बहुत ज़्यादा बुखार होता है और वो कहता है मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले जाऊँ। वो कहती है नहीं अब मुझे आराम की ज़रूरत है, तुम जाओ मुझे आराम करने दो। वो कहता है चलो ठीक है तुम आराम करो, मैं आऊँगा फिर तुम्हारा पता ले जाऊँगा। वो अंकल उसे कहता है अच्छा तुम आराम करो, मैं फिर तुम्हें मिलने के लिए हूँ। इतने में वकील वाला सीन आता है। वहाँ पे वकील जो कि परेशान होता है कि अभी तक तो अंकल को कुछ हुआ नहीं, अंकल के रिश्तेदार सारे जायदाद में लग गए हैं। इतने में अंकल का एक जो भाई का जो बेटा है वो भी वहाँ मौजूद होता है। वो काफ़ी अमीर होता है और वो इनकी बातें सुन के काफ़ी परेशान हो रहा होता है। इतने में उस लड़के की बेगम जो कि अपने शौहर से कहती है कि तुम्हारा क्या मूड है, तुम क्या कहना चाहते हो कि हम ये जायदाद अपने नाम ले लें। अंकल का भाई भी वहाँ पे खड़ा होता है। वो देखता है कि आंटी भी काफ़ी बेहोशी की हालत में है। वो उसकी तरफ देखता रहता है और देख के उसे कहता है डॉक्टर साहब इन्हें भी चेक करें, ये भी काफ़ी दिनों से अपसेट वगैरह हैं, देखें इनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल है कि नहीं। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों ड्रामा सीरियल आजकल काफ़ी छाया हुआ है। ये ड्रामा सीरियल की 71 नंबर किस्त जो कि आने वाली है। इसमें एक अंकल जो कि बहुत ज़्यादा बीमार होता है, वो लड़की उसे कह रही होती है कि तुम कभी इतना बीमार तो नहीं हुए, तुम्हें क्या हो गया है। मैं डॉक्टर को फ़ोन करती हूँ। इतने में वो डॉक्टर को कॉल करती है और अंकल से कहती है कि तुम रेस्ट भी तो नहीं करते, दिन रात काम में मसरूफ़ रहते हो, तुम्हें चाहिए कि तुम रेस्ट करो, इतना काम करोगे तो बीमार हो जाओगे। इतने में वो डॉक्टर वहाँ पर आता है। डॉक्टर आकर उसे कहता है कि इसे क्या हुआ है। वो कहती है कि अब काफ़ी अरसे से ये बीमार थे और दिन रात काम में मसरूफ़ रहते थे। इतने में वो दूसरी आंटी बहुत परेशान होती है और दुआ कर रही होती है कि या अल्लाह ये जल्दी से सही हो जाए। उसके बच्चे भी बहुत परेशान होते हैं। उसकी बेटी कहती है या अल्लाह पाक मेरे वालिद को जल्दी सेहत अता फरमा, और आंटी भी साथ दुआ कर रही होती है। वो लड़की अपनी वालदा से कहती है कि अम्मी जान हम क्यों ना अब्बू जान को बाहर ले जाएं, कहीं बाहर मुल्क में ले जाएं, वहाँ से इनका इलाज करवाते हैं। इतने में उनकी एक रिश्तेदार आती है जो कि अपने हस्बैंड के साथ आती है। उसका हस्बैंड डॉक्टर होता है, जो कि डॉक्टर देखते ही कहता है कि अंकल अब लास्ट स्टेज में हैं, इनकी खिदमत कर लो जितनी करनी है। वो सब हैरानगी से डॉक्टर की तरफ देखते हैं और डॉक्टर कहता है मैंने ऐसे पेशेंट काफ़ी देखे हैं जो कि इस स्टेज में आके उनको ये बीमारी लग जाती है। इस बीमारी के कुछ अर्से बाद उनकी डेथ हो जाती है। चाहे आप इनका जितना मर्ज़ी इलाज करवा लें, जहाँ से मेडिसिन ले, वो एक दूसरे की तरफ देखते हैं और परेशान हो जाते हैं और सोचते हैं कि इसके बाद इसकी जायदाद का क्या बनेगा। एक कहता है मैं इसकी जायदाद पे कब्ज़ा करूँगा, दूसरा कहता है मेरे हिस्से में आएगी। इतने में अंकल देख के परेशान हो जाते हैं और कहता है क्या हुआ, अभी तो मैं मरा भी नहीं, तुमने मेरे मरने से पहले ही जायदाद बांटनी शुरू कर दी। तो तमाम परेशानियों के साथ साथ वो दूसरा वकील जो आता है वो वहीं पे बैठा होता है और वकील कहता है कि मेरे पास इसकी वसीयत है। वो लड़की जो उसकी अंकल की
जो उस अंकल की पोती होती है, अंकल उससे कहता है कि तुमने काफ़ी मेरा साथ दिया है, मैं सोच रहा हूँ कि सारी जायदाद तुम्हारे नाम में कर दो। इतने में उस लड़की का शौहर भी वहाँ पे होता है। वो कहता है क्यों नहीं अंकल, आखिर मेरी बेगम ने तुम्हारी इतनी खिदमत की है तो तुम जायदाद इसके हवाले कर दो। इतने में वो लड़का वहाँ से पेपर लेके आता है और पेपर लाते साथ ही उसे कहता है कि यहाँ पे साइन कर दें आप। इतने में वो अंकल की बेगम कहती है कि अभी रुक जाओ, अभी तो ये ज़िंदा हैं, तुम पहले ही वसीयत अपने नाम करवाने लगे हो। यहाँ पर दोस्तों एकदम से आंटी को भी अटैक आ जाता है, जो कि एकदम से बेड पे जाके गिर जाती है और दूसरा अंकल उसके पास आके कहता है क्या हुआ बिस्मा, तुम्हें आंखें क्यों नहीं खोल रही, उठो जल्दी से, क्या हुआ तुम्हें। इतने में आंटी आंखें खोल लेती है और वो आंटी के माथे पे हाथ लगाता है जिसे बहुत ज़्यादा बुखार होता है और वो कहता है मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले जाऊँ। वो कहती है नहीं, अब मुझे आराम की ज़रूरत है, तुम जाओ, मुझे आराम करने दो। वो कहता है चलो ठीक है, तुम आराम करो, मैं आऊँगा फिर तुम्हारा पता ले जाऊँगा। वो अंकल उसे कहता है अच्छा तुम आराम करो, मैं फिर तुम्हें मिलने के लिए हूँ। इतने में वकील वाला सीन आता है। वहाँ पे वकील जो कि परेशान होता है कि अभी तक तो अंकल को कुछ हुआ नहीं, अंकल के रिश्तेदार सारे जायदाद में लग गए हैं। इतने में अंकल का एक जो भाई का जो बेटा है वो भी वहाँ मौजूद होता है। वो काफ़ी अमीर होता है और वो इनकी बातें सुन के काफ़ी परेशान हो रहा होता है। इतने में उस लड़के की बेगम जो कि अपने शौहर से कहती है कि तुम्हारा क्या मूड है, तुम क्या कहना चाहते हो कि हम ये जायदाद अपने नाम ले लें। अंकल का भाई भी वहाँ पे खड़ा होता है। वो देखता है कि आंटी भी काफ़ी बेहोशी की हालत में है। वो उसकी तरफ देखता रहता है और देख के उसे कहता है डॉक्टर साहब इन्हें भी चेक करें, ये भी काफ़ी दिनों से अपसेट वगैरह हैं, देखें इनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल है कि नहीं। वो लड़की उसे कह रही होती है कि तुम कभी इतना बीमार तो नहीं हुए, तुम्हें क्या हो गया है, मैं डॉक्टर को फ़ोन करती हूँ। इतने में वो डॉक्टर को कॉल करती है और अंकल से कहती है कि तुम रेस्ट भी तो नहीं करते, दिन रात काम में मसरूफ़ रहते हो, तुम्हें चाहिए कि तुम रेस्ट करो, इतना काम करोगे तो बीमार हो जाओगे। इतने में वो डॉक्टर वहाँ पर आता है। डॉक्टर आकर उसे कहता है कि इसे क्या हुआ है। वो कहती है कि अब काफ़ी अरसे से ये बीमार थे और दिन रात काम में मसरूफ़ रहते थे। इतने में वो दूसरी आंटी बहुत परेशान होती है और दुआ कर रही होती है कि या अल्लाह ये जल्दी से सही हो जाए। उसके बच्चे भी बहुत परेशान होते हैं। उसकी बेटी कहती है या अल्लाह पाक मेरे वालिद को जल्दी सेहत अता फरमा, और आंटी भी साथ दुआ कर रही होती है। वो लड़की अपनी वालदा से कहती है कि अम्मी जान हम क्यों ना अब्बू जान को बाहर ले जाएं, कहीं बाहर मुल्क में ले जाएं, वहाँ से इनका इलाज करवाते हैं। इतने में उनकी एक रिश्तेदार आती है जो कि अपने हस्बैंड के साथ आती है। उसका हस्बैंड डॉक्टर होता है, जो कि डॉक्टर देखते ही कहता है कि अंकल अब लास्ट स्टेज में हैं, इनकी खिदमत कर लो जितनी करनी है। वो सब हैरानगी से डॉक्टर की तरफ देखते हैं और डॉक्टर कहता है मैंने ऐसे पेशेंट काफ़ी देखे हैं जो कि इस स्टेज में आके उनको ये बीमारी लग जाती है। इस बीमारी के कुछ अर्से बाद उनकी डेथ हो जाती है। चाहे आप इनका जितना मर्ज़ी इलाज करवा लें, जहाँ से मेडिसिन ले, वो एक दूसरे की तरफ देखते हैं और परेशान हो जाते हैं और सोचते हैं कि इसके बाद इसकी जायदाद का क्या बनेगा। एक कहता है मैं इसकी जायदाद पे कब्ज़ा करूँगा, दूसरा कहता है मेरे हिस्से में आएगी। इतने में अंकल देख के परेशान हो जाते हैं और कहता है क्या हुआ, अभी तो मैं मरा भी नहीं, तुमने मेरे मरने से पहले ही जायदाद बांटनी शुरू कर दी। तो तमाम परेशानियों के साथ साथ वो दूसरा वकील जो आता है वो वहीं पे बैठा होता है और वकील कहता है कि मेरे पास इसकी वसीयत है। वो लड़की जो उसकी अंकल की जो उस अंकल की पोती होती है, अंकल उससे कहता है कि तुमने काफ़ी मेरा साथ दिया है, मैं सोच रहा हूँ कि सारी जायदाद तुम्हारे नाम में कर दो। इतने में उस लड़की का शौहर भी वहाँ पे होता है। वो कहता है क्यों नहीं अंकल, आखिर मेरी बेगम ने तुम्हारी इतनी खिदमत की है तो तुम जायदाद इसके हवाले कर दो। इतने में वो लड़का वहाँ से पेपर लेके आता है और पेपर लाते साथ ही उसे कहता है कि यहाँ पे साइन कर दें आप। इतने में वो अंकल की बेगम कहती है कि अभी रुक जाओ, अभी तो ये ज़िंदा हैं, तुम पहले ही वसीयत अपने नाम करवाने लगे हो। यहाँ पर दोस्तों एकदम से आंटी को भी अटैक आ जाता है, जो कि एकदम से बेड पे जाके गिर जाती है और दूसरा अंकल उसके पास आके कहता है क्या हुआ बिस्मा, तुम्हें आंखें क्यों नहीं खोल रही, उठो जल्दी से, क्या हुआ तुम्हें। इतने में आंटी आंखें खोल लेती है और वो आंटी के माथे पे हाथ लगाता है जिसे बहुत ज़्यादा बुखार होता है और वो कहता है मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले जाऊँ। वो कहती है नहीं, अब मुझे आराम की ज़रूरत है, तुम जाओ, मुझे आराम करने दो। वो कहता है चलो ठीक है, तुम आराम करो, मैं आऊँगा फिर तुम्हारा पता ले जाऊँगा।
वो अंकल उसे कहता है अच्छा तुम आराम करो, मैं फिर तुम्हें मिलने के लिए हूँ। इतने में वकील वाला सीन आता है। वहाँ पे वकील जो कि परेशान होता है कि अभी तक तो अंकल को कुछ हुआ नहीं, अंकल के रिश्तेदार सारे जायदाद में लग गए हैं। इतने में अंकल का एक जो भाई का जो बेटा है वो भी वहाँ मौजूद होता है। वो काफ़ी अमीर होता है और वो इनकी बातें सुन के काफ़ी परेशान हो रहा होता है। इतने में उस लड़के की बेगम जो कि अपने शौहर से कहती है कि तुम्हारा क्या मूड है, तुम क्या कहना चाहते हो कि हम ये जायदाद अपने नाम ले लें। अंकल का भाई भी वहाँ पे खड़ा होता है। वो देखता है कि आंटी भी काफ़ी बेहोशी की हालत में है। वो उसकी तरफ देखता रहता है और देख के उसे कहता है डॉक्टर साहब इन्हें भी चेक करें, ये भी काफ़ी दिनों से अपसेट वगैरह हैं, देखें इनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल है कि नहीं।